Yeah, I hope I am audible now. Okay, so can you hear me now? Is everything fine? So, prelims previous year question paper on environment part 2. All right. So, yeah, let us get started with this. We were discussing 2011, 2012. So, let us get started. Okay. So, guys, let's focus. चालू करते हैं 2013 की क्वेश्चन से. 2013 हमारे ने भी दिया था एग्जाम. ठीक है, ठीक ठाक नंबर भी आए थे, तो पढ़ लो ताकि आपके भी ठीक ठाक नंबर आ जाए. ठीक है, तो 2020 या 2021 में which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India? अच्छा, चलो देखते हैं भाई क्या चाहता है क्वेश्चन. तो आर्सेनिक तो 100% मिलता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? सुना ही होगा बचपन से आपने. क्वेश्चन पूछ रहे मधु जी, प्लीज वर्किंग मदर्स के लिए भी डेली शेड्यूल. सी, वर्किंग मदर्स में क्या होता है क्या नहीं होता मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है. दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब में से एक है, राइट? किसी यंग वन को पालना, मतलब इट्स नॉट एन इजी थिंग. So you can follow like a working professional. You might be giving 7-8 hours a day to that also. So you can follow a strategy, and it will be quite similar to a working professional. ठीक है, that's all I can say. So आर्सेनिक तो मिलता है ना, अरे सुना होगा ना, आर्सेनिक के यहाँ पे हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया. सॉर्बिटॉल तो सर खाने में डलता है. ठीक है. सॉर्बिटॉल कब से पानी में मतलब एज अ पॉल्यूटेंट होने लगे? कैसी बातें कर रहे हो आप? जब आपकी च्युइंग गम्स वगैरह होती हैं या फिर काफी कुछ होता है, इट्स जस्ट जैसे आपने देखे होगा ना, बोलते हैं ना दांत, तो दांतों को प्रिवेंट करने के लिए और उस टाइप से, मतलब टू प्रिवेंट एनी कैरीज एक्सेट्रा. ओके, सो तो ये तो नॉनसेंस है. फ्लोराइड मिलता ही है. फॉर्मेल्डिहाइड तो डेड बॉडीज में होता है सर, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए होता है, वो नहीं होता पॉल्यूटेंट. सो फर्स्ट है, थर्ड है, तो या तो होगा सी या होगा ए. यूरेनियम भी रेयरली कभी कभार हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी. So you can find like obviously a lot of nitrate poisoning is very commonly seen. Fluoride, iron, salinity, arsenic, uranium, lead, chromium, cadmium. All right, is it clear? So answer is C. समझ में आ रहा है ना? देखो कॉमन सेंस लगाओगे और सॉर्बिटॉल, जाइलिटॉल, ये तो सब शुगर अल्कोहल्स होते हैं सर. आपकी जो ऑर्बिट और ये जो च्युइंगम होती है ना, हैप्पीडेंट वाइट, उनमें भर भर के होता है सब. ठीक है, so arsenic, fluoride, uranium, that is very very important. So let us get started. ठीक है, तो अगर सेकंड आप एलिमिनेट कर दोगे तो बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया. अगर आपको इतना भी पता है कि सॉर्बिटॉल इज एन आर्टिफिशियल शुगर. सो सैलिनिटी पॉल्यूटेंट, कैसे कैसी बातें कर रहे हो? आपके पानी में अगर ज्यादा सैलिनिटी है तो पी पाओगे आप उस पानी को? विल यू बी एबल टू यूज इट फॉर एनीथिंग एट ऑल? आंसर इज नो. यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट वाटर फॉर एनीथिंग. फॉरगेट अबाउट ड्रिंकिंग. ओके, अरे हैवी वाटर का नाम सुना होगा ना, उसमें भी तरह तरह के जो होते हैं, मतलब यू हैव टू बेसिकली रिमूव दैट एक्सेट्रा. So in the grasslands, trees never replace the grass as part of an ecological succession because see, trees बनने के लिए grassland में you have relatively less rainfall. Is it absolutely clear? Grasslands are very much characterized by less rainfall, and because it has less rainfall, so there is limited water to become tree. ठीक है, and obviously every time there is a water, so fire, so trees take a lot of time, right? But grass can regenerate very fast. So answer is that trees do not replace the grass as part of an ecological succession in grassland because there is a limited water which is available, and then there is a fire. Do you understand? This is very conceptual, good looking, very beautiful question of biosphere. All right, yes sir, if you are uranium is present in your water, it is considered as a water pollutant. ठीक है, so answer is C, water limits and fire. So grasslands are found in place of low rainfall. All right. So in dry seasons, grasses dry up and cause fire. You can let me know what is the issue. I'm not. You can tell me the issue. I can tell them. So grasses will dry up. It will cause fire, which will destroy all the plants in that area. So fire, lack of water makes grasses to be the climax community in grasslands. Okay. So we will discuss it later. All right. So don't worry about it.
Which one of the following is the correct sequence of ecosystems in order of decreasing productivity? ठीक है. अरे ग्रासलैंड में सनलाइट का क्या लेना देना है, कैसी बातें कर रहे हो? और कौन से न्यूट्रिएंट की कमी आ गई वहां पे? दीज आर नॉनसेंस स्टेटमेंट. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज नॉट इवन अ, इसमें तो कोई फाइट भी नहीं है, आप इसी में कंफ्यूज हो रहे हो. ऑलराइट, so don't worry about it at all. See, just focus on the lessons which I am telling you. If there is any confusion, I will tell you there is a confusion. All right, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कंफ्यूजन करनी है, राइट? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट बिकॉज मैं बोलता हूँ यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन तो सही होते हैं ना, बताया तो था 90 to 95% क्वेश्चन तो पॉइंट ही नहीं. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव है उसको सबसे पहले लगाओ. तो ऑब्वियसली मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, ये जो इकोसिस्टम होते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. ऑलराइट, सो मैंग्रोव्स तो आएगा ही. जो भी ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है, एस्चुरी हो गया, जो भी दो इकोसिस्टम के बीच में जो पड़ता है, बाद में पढ़ाऊंगा ये क्यों होता है. और अगर वैसे बात करें, ओपन सिस्टम होगा कोई भी, ओशियन या डेजर्ट, वो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव होता है. ठीक है, ओपन सिस्टम जो भी होगा वो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव होगा, और जो ट्रांजिशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा. तो ओशियन तो देखो लीस्ट प्रोडक्टिव होगा, तो ओशियन लास्ट में आएगा. आंसर ये हो गया, डायरेक्टली छोड़ दो इसको. ठीक है, प्रोडक्टिविटी हर जगह एक ही मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब मैं आपको एनवायरनमेंट आगे पढ़ाऊंगा. अभी आप ये देख लो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सारा ज्ञान यही मत निकालो कि बस इसी 1 घंटे में सब पढ़ लेंगे. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. इट इज जस्ट दैट what we are trying to discuss is what type of questions come in the UPSC, and we are just emphasizing on that. So mangroves are than lakes, than oceans. People get distracted very fast. Do you understand? Again, like you are just distraction हो रहा है कि रेनफॉल कम है, कि प्रेसिपिटेशन ज्यादा है. अरे इसी 1 घंटे में सब कुछ करना जरूरी है क्या आपको लाइफ में? मतलब बाद में कर लेना. अगर 11:30 से 12:30 कर लेना, 12:30 से 1:30 कर लेना, 1:30 से 2:30 कर लेना. इसी 1 घंटे में क्यों करना जरूरी है सब कुछ? अभी इसका पर्पज ये है कि आपको एक बार सेंसिटाइज कर दो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, बट नहीं, उसी 1 घंटे में सारा सब कुछ उसी में करना है. और वैसे 3 साल कुछ नहीं करेंगे, फिर उसी 1 घंटे में पढ़ेंगे, फिर 2 साल कुछ नहीं करेंगे. ओके, see, mangroves are transitional ecosystems which has the highest productivity than other ecosystems mentioned, and open systems have the least productivity like oceans and deserts. We will discuss it why. Acid rain is caused by the pollution of the environment. I have told you HNO3 and H2SO4, right? बताया था मैंने आपको. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बेकार सा घटिया सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं. pH less than 5.6. So नाइट्रस ऑक्साइड से बनेगा नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड से बनेगा सल्फर. तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई होना नहीं चाहिए आप लोगों को. कुछ लोग गधों की तरह इसको CO2 भी बोलते हैं कि H2CO3 बना देगा, बट दैट इज नॉट अ प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन. ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट. इफ यू आर अ ट्रू रोमन सेनी एनवायरमेंट स्टूडेंट, यू विल रिमेंबर दिस. एसिड रेन, जब रेन को अगर एसिडिक करना हो तो HNO3 H2SO4 डालते हैं. मेरे को पता है 3 लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड. मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुन तो लो यार एक बार. लिटरली वही बोल रहा हूँ मैं कि कार्बोनिक एसिड, मतलब एक बार देख तो लो सामने क्या चल रहा है. आप टाइप करे जा रहे हो, करे जा, देख तो लो. तो सॉरी की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि इससे आप लोग का वो पता चलता है. बस पूछना है, लिखना है. मेरे को पता था ये पूछोगे. सो H2CO3, basically it will go into the ocean. And do you know ocean acts as an absorption of carbon dioxide? It is called as carbon dioxide sink या कार्बन सिंक. इससे क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है, उससे पीएच आपका कम हो जाता है, कोरल रीफ मर जाती है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, सो अगर ओशियन एसिडिफिकेशन का प्राइमरी कल्प्रिट पूछे हैं तो H2CO3 होता है. बट अगर वैसे प्राइमरी कल्प्रिट पूछे तो HNO3 और H2SO4 होता है. ठीक है सर, कोई डाउट है किसी तरीके का, कोई परेशानी है अभी लाइफ में? आई होप कोई परेशानी नहीं होगी. Acid rain is a mixture of basically sulfur dioxide, nitrous oxide with water, 5.6 से कम. So yeah, by the way, मेरे ज्यादातर आंसर सही हुए थे, and I did not have a benefit of hindsight. I was doing it in the exam hall in real time. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मैं बाद में आके चेंज कर रहा था. मैं एग्जाम दिया है, वाला यही वाला दिया था.
With reference to food chains in ecosystem, consider the following statements. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. ऑब्वियसली बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल 100% करेक्ट है, कोई 1% भी इसमें शक है ही नहीं। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीसीज। अरे यार, ये कैसी कौन सा नशा करके आए हैं? फूड चेन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज थोड़ी मिलेंगी। आदमी आदमी को खा रहा है, कुत्ता होता है। ओके, दिस इज नॉनसेंस। ओके, सो हाउ कैन द फूड चेन, हमेशा ऐसे देखते हो ना, घास होती है उसको एक फ्रॉग खाता है, उसको कोई सांप खा जाता है, उसको पीकॉक खा जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो देखी होगी, घटिया सी बना देते हैं, कोई टिड्डा होता है, कॉकरोच होता है, उसको रैबिट खा जाता है, रैबिट को वुल्फ खा जाता है, यही तो देखा होगा ऐसे। ऐसे थोड़ी देखा है, वुल्फ को वुल्फ खा गया, फिर वुल्फ को और वुल्फ खा गया, फिर उसके बड़ा वुल्फ खा गया, फिर बड़ा वुल्फ खा गया, ऐसे थोड़ी होता है। कॉमन सेंस ही तो है। या एक पहले छोटा शेर दिखाया, फिर उसको मीडियम शेर खा गया, फिर उसको बड़ा शेर खा गया। सो दिस इज सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट, राइट? Within the population of a species, the answer is no. A food chain illustrates the numbers of each organism which are eaten by others. ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो डिटरमाइन करना ही बहुत मुश्किल है कि भैंस 1 किलो घास खा गई या 10 किलो घास खा गई। ऐसे थोड़ी लिखा रहता है ब्रैकेट में 7.5 किलो घास खाई भैंस ने, फिर आगे लिखा रहता है पीकॉक ने 2 किलो सांप खाए। ऐसे थोड़ी लिखा रहता है नंबर से, या फिर कि आज मैं 17 सांप खा के आया हूँ। ठीक है, दिस इज अ यूजलेस नंबर, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन आल्सो। So number of organisms is quite different. Overall biomass may be at mega level you can determine, बट भाई किसी की भूख ज्यादा होगी, कोई 2-3 डियर खा जाएगा, एक थोड़ा कम खाने वाला होगा, डाइटिंग पे होगा, थोड़ा कम खाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली डिटरमाइन नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ईटन बाय अदर्स। वेरी स्पेसिफिकली इट इज आस्किंग, राइट? सो जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ भी लिख देता है तो आप उसको सच मत मानो, ठीक है? कई बार लोगों को लगता है डॉक्टर्स कुछ भी बोल देते हैं उसको सच मान लेते हैं। ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइव्स व्हिच विल बी लिविंग। तो ऐसा लगता है डॉक्टर ने बोला, ऐसा कुछ है नहीं, तो वो कुछ सही होगा मतलब ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आंसर इज A1 ओनली, ठीक है? सी फूड चेन ऑलवेज हैव मेनी स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। ओके, सो number of organisms are not presented here. Okay, it's not, so don't worry about it. Now let us talk about agaricus, nostoc and spirogyra. All right, so agaricus, nostoc and spirogyra. All right, is it clear? क्या है? Which of the following are biofertilizers? See, nostoc is definitely there. Okay, जैसा आपने देखा होगा, it is a free living nitrogen fixing bacteria. बाकी राइजोबियम वगैरह सिम्बायोटिक होते हैं। सो स्पायरोगायरा क्या होता है? डज एनीवन नो व्हाट इज स्पायरोगायरा? अब ये क्या है, थोड़ा भी अगर किसी ने बायो शायो पढ़ी हो तो ये फंगस होती है बेसिकली एक, और ये गोलियां आती हैं। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? सी गोलियां आती हैं और लोग उसको प्रोटीन सोर्स की तरह खूब खाते हैं भर भर के। इज इट क्लियर? सो इट इज वेरी कॉमनली ईटन, स्पायरोगायरा। ऑलराइट, एक्चुअली मैं भी खाता था पहले। सो स्पिरुलिना और ये सब इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। नो नो, बहुत सारे तरीके की होती हैं। ऑलराइट, सो मतलब it is eaten a lot commonly, these kind of fungus etc. So it's a green algae, sorry, not fungus, it's a green algae. So yeah, and so lot of dishes etc में मिलती है और काफी सारे वो होते हैं। ओके, so not like us, so answer is it is not there. Right, ये नॉन वेज है सर। पहले वेज और नॉन वेज पे क्वेश्चन पे क्यों पहुंच जाते हो मतलब? तो टेक्निकली तो पौधा है साहब, पौधा तो नॉन वेज कैसे होगा? क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको मशरूम के ऊपर, तो ये वेज है कि नॉन वेज है, ये कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता, इट इज अनडिटरमाइनेबल। ऑलराइट, ये नहीं पता किसी को ये क्या है, ठीक है? इससे क्या फर्क पड़ता है वो वेज है कि नॉन वेज है? क्यों वो 400 2000 साल पहले थोड़ी लिखेंगे बुक्स में कि आपको स्पिरुलिना खाना चाहिए कि नहीं, ठीक है? या आपको अमेनिटा मस्कोडाइस खाना चाहिए, डिस्कवरी नहीं हो तो तब कहाँ से करोगे? So Nostoc is the answer. All right. So answer is B, two only. So biofertilizers are defined as preparation containing living cells or latent cells and nitrogen fixing biofertilizer.
बिकॉज ऑफ विटामिन B12 मशरूम इज नॉन वेज। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो फिर तो आप पनीर भी नहीं खा सकते, फिर पनीर शुड ऑल्सो बी नॉन वेज। फिर तो आप दूध भी नहीं पी सकते, फिर तो आप दही भी नहीं खा सकते, फिर तो आप जो भगवान के चढ़ाते हुए दूध दही ये भी नॉन वेज है फिर तो। ये कौन सा लॉजिक है मतलब? B12 के कारण भाई अलग लेवल है आप तो। Most of the Indians are not vegan, okay, by the way, obviously, मतलब we are not vegans. 99.9% of Indians consume animal products, right? दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये तो मतलब इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। So they are not vegan products at all, right? They are animal-based products. They are not vegan. So free living are like Azotobacter, Clostridium, Anabaena, Nostoc. Then you have symbiotic like Rhizobium, all right? Yeah, this is a hard question, all right? So don't worry about हमेशा, जो कि प्योर बायो स्टूडेंट तो सॉल्व कर देगा, बट कोई मतलब नहीं है आपको अभी पढ़ने लग गए नॉस्टॉक, राइजोबियम, एनाबीना शनाबीना, इनमें मत खो जाना, ठीक है? तो चला परेशान हो गए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्किल्स ऑक्यूपाइड बट अ फंक्शनल रोल? ये तो टिपिकल निश की बात कर रहा है, ठीक है? मतलब टिपिकल डेफिनेशन है निश की, कि मतलब जैसे टाइगर और लॉयन एक ही निश ऑक्यूपाई करते हैं, राइट? दोनों एपेक्स प्रेडेटर है ना, दोनों का काम है हिरणों को मारना, राइट? यू अंडरस्टैंड? सो कभी भी टाइगर और लायन साथ में नहीं रहते, ओके? यू अंडरस्टैंड? यू विल नेवर फाइंड टाइगर एंड लायन लिविंग इन द सेम एरिया। सो उनका फंक्शनल रोल हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल नॉट, लेट्स से रैबिट है, जहाँ रैबिट पहुंच जाता है पता है, वहां पे बाकी हर्बीवोर्स अपने आप गायब हो जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बस रैबिट का निश क्या है, उसको घास खानी है, राइट? ऑलराइट, उसको घास खानी है, तो वो घास इतनी अच्छी तरीके से खाता है कि वो गाय, भैंस, बकरी, डियर वियर किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है? सो रैबिट कोई भैंस को तो मारेगा नहीं जाके, ऑब्वियसली अकेले रैबिट के बस की बात तो है नहीं, बट वो इतनी बुरी तरह घास खा जाएंगी कि वो भैंस अपने आप मर जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो एक निश में दो स्पीसीज नहीं रह सकती, जैसे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जैसे यूजुअली देखा जाता है कि एक इकोलॉजिकल निश में दो स्पीसीज टिकती नहीं है। ऑलराइट, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो ecological niche is your functional role, what do you do in that ecosystem? For example, let us say vultures का एक typical role होता है, right? vultures का क्या role होता है कि जो dead body है उसको खाना होता है उनको, right? dead body को साफ सुथरा करना होता है, right? scavengers होते हैं। So आप you will not find like 4 different species of scavengers living together, ठीक है? So ecological niche होता है उनका। So it indicates the physical space and functions which you are going to perform. All right. So please remember this. Very very important. Photochemical smog is the result of reaction between, ठीक है? कई कई तरह की स्मॉग्स होती हैं, अभी दिल्ली में भी स्मॉग ही चल रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग टिपिकल होता है। सो उसमें जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वोलेटाइल कंपाउंड्स होता है, इट प्रोड्यूसेस ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ सनलाइट, ठीक है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस बोलता है, राइट? बिकॉज फोटो है और केमिकल है, सो फोटो मतलब लाइट होता है, राइट? सो इट नीड्स सनलाइट। सो अदर ऑप्शंस गोज आउट ऑफ द विंडो, आइदर ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, राइट? So NO2O3 peroxyacetyl nitrate is the example. All right, so answer is A. So just remember that photochemical smog कुछ होता है. With reference to the food chain in ecosystem, which of the following kinds of organism are known as decomposer organisms? All right, चलो पढ़ते हैं। Decomposer क्या होता है? तो वायरस का कोई लेना देना ही नहीं है आपके किसी चीज से। So आपकी कोई, आप खाना बाहर छोड़ दो तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है ना, so it starts decomposing that food, right? अदरवाइज तो पड़ा रहेगा जिंदगी भर, राइट? सो पड़ा नहीं रहता। सो virus is definitely not there, fungus and bacteria is the answer, so answer is B, that is 2 and 3 only. virus थोड़ी लग जाता है ब्रेड के ऊपर, राइट? virus can only survive in the host which is a living host, right? वो ब्रेड डेड सबस्ट्रेट पे थोड़ी लगेगा, how will it decompose anything, right? so 1 अगर आप हटा भी दो तो आप ऑटोमेटिकली आंसर B 2 and 3 हो जाता है। अब सबसे बड़े जो गधे होते हैं वो यहाँ पे सोचते हैं बैक्टीरिया है कि नहीं, ऑलराइट? तो सबसे अलग लेवल के गधे होते हैं, वो ये दिमाग लगाते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के कि चलो यार फंगस का तो पता है, पर बैक्टीरिया है कि नहीं, राइट? कॉमन बात है, बिल्कुल सही बात है। इफ द ऑप्शंस वाज लाइक 2 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली, तो दिमाग लगाओ यार, बट थोड़ा जो आपके भगवान ने जो ब्रेन दिया है उसको यूज कर लो ना।
जब 1 हट चुका है और हर ऑप्शन में 3 है, तो 3 तो होना ही है ना। देखो 1 तो हो नहीं सकता, हर ऑप्शन में 3 है, तो 3 तो होगा ही होगा, तो बैक्टीरिया को भूल जाओ, और 1 हो नहीं सकता, तो आंसर तो बी हो गया ना अपने आप ऑटोमेटिकली। बट कई लोग क्या ये सोचते नहीं है, 30 सेकंड के बाद दिमाग में आती है बात कि भाई ये तो 2 एंड 3 तो सामने ही है, इनको ही कर लेते, है ना। वहां पे दिमाग लगा लोगे 30 सेकंड, उतनी बैटरी होती है, फिर बैटरी खत्म हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। So decomposers are organ. It has nothing to do with 50-50 rule. There is nothing. There is no 50-50. There is no 50-50. You just eliminate option 1. Answer is B, 2 and 3 only. This is not 50-50 rule. This is the exact answer. This is common sense. Alright. So let us get started with our 2014 questions. So बाकी भी पढ़ेंगे अपन और डिटेल में आगे. But this is to give you an idea about what is going on, right? So which one of the following is the process involved in photosynthesis? Potential energy is released to form the free energy. Is it correct? That potential energy is released to form the free energy in photosynthesis. उल्टा होता है ना यार, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात कर दी। उल्टा होता है कि फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो और स्टोर हो जाती है। सो आंसर इज बी। So very typical example. Photosynthesis may take a lot of free energy in the form of sunlight, carbon, etc. So it's a process which is used by plants and other organisms, and it converts light energy into chemical energy, right? So photosynthesis will utilize the CO2, it will give out the oxygen, and finally it is stored in the form of sugar, right? Sugar मतलब वही glucose और starch और ये सब कुछ, right? Which of the following adds carbon dioxide to the carbon cycle on the planet Earth? Volcanic action, yes, gases will be released, right? Common sense hai. Respiration, yes, obviously. The moment I respire, I release it, right? Photosynthesis, no. Decay of organic matter, yes. So everyone knows that photosynthesis cannot add anything, right? So ये तो eliminate हो गए, ऑप्शन ही eliminate हो गए। अब यहाँ पे आप 50-50 रूल लगा सकते हो। कोई बोल रहा था ना 50-50 रूल क्या होता है। मान लो कि आपको इतना तो पता है कि फोटोसिंथेसिस पेड़ लगाने से फोटोसिंथेसिस होती है, बचपन में मैडम ने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन देता है पेड़ और कार्बन ले लेता है, राइट। So you can eliminate option point number 3. So you are left with either B and C. So you know that organic material is made up of carbon, and if carbon is decayed, then obviously CO2 will be released. But let's say you don't know anything, then it will be 50-50 rule. समझ में आ गया? अच्छा, let's say you don't know anything about anything. Let's say you don't know anything about anything, but you know that photosynthesis can definitely not lead to increase in the carbon, and you end up eliminating option A and D, and you are left with option B and C. So will you be attempting this question if you don't know anything about anything after that? तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, अभी भी देख लो। So answer is yes, you should definitely attempt it because it is a very high chance that you will get it correct. It's a 50% chance. So other than the photosynthesis, all the other options will release CO2 into the atmosphere. So answer is C. In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में सॉइल इरोजन की, सर मानता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो टेरेस कल्टीवेशन होती है, टेरेस कल्टीवेशन होती है, दैट इज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? The terrace cultivation is actually done to prevent soil erosion. All right. So answer 1 is eliminated automatically. So obviously answer is B, 2 and 3, 2 only. So terrace cultivation is done to prevent soil erosion. Eliminate the option 1, it will leave you with option B only, right? So that is the answer. Tropical climate का soil erosion से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा उसमें। Now see this how fuzzy this question is. Lichen which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are fungus and algae, everyone knows that. It is mentioned even in NCRTs also, right? सब कुछ mentioned होता है, NCRT में भी सब दे रखा है। It's fairly simple, it's fairly easy. The most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is establishment of, कैसे करोगे establishment बताओ? बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब बकवास है। इनमें तो आपको कोई टच ही नहीं करने देगा कुछ, राइट। इसमें आदमी तो रहते नहीं है बॉटनिकल गार्डन्स में उतने।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन अलाउड है. Okay, and biosphere reserve is something which allows everything, right? We'll discuss it later on. Biosphere नाम ही है ना, man and biosphere, isn't it? प्रोग्राम का नाम ही है सर, man and biosphere, all right? So obviously biosphere reserve में man and biosphere will live together, right? Common sense है ना, नाम में ही है man and biosphere. थोड़ा दिमाग तो लगा लो. So it conserve everything and everyone inside, including community, with basic scientific principles. And with respect to eco-sensitive zones, which of the following statements are correct? So with reference to eco-sensitive zones, which of the following statement is or are correct? ठीक है भाई, देखते हैं. So eco-sensitive zones are the areas which are declared under Wildlife Protection Act of 72. ये गलत है, Environment Protection Act of 86 के अंदर आता है. The purpose of declaration is to prohibit all kinds of human activities. No, it is to regulate the activities. It's wrong. All right. So answer is D. That is neither one nor two. So it is to regulate the activity. It is comes under Environment Protection Act 86. So again, like this was not supposed to be answered by you. It was उस टाइम का करंट अफेयर था, ठीक है. उस टाइम का करंट अफेयर्स था, उस टाइम काफी न्यूज में भी आता था ये. तो हार्ड नहीं है. उस टाइम अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो इजी रहता, क्योंकि मैं पढ़ता था उस टाइम अखबार. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. डंपा टाइगर रिजर्व इन मिजोरम. मिजोरम में है, तो ऑब्वियसली इट इज इन मिजोरम, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा. सारामती इज इन नागालैंड. ठीक है, सही है. तो गुमती तो गलत है, त्रिपुरा की है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. तो आंसर इज सी. So Dampa Tiger Reserve is located in western Mizoram. Gumti is located in Tripura. Saramati is a peak rising in the state of Nagaland and in Burma, right? Or Myanmar. So answer is C. Now let us discuss question number 8. Alright, so क्या है question number 8? हरिके wetland is in Beas and Satluj. बिल्कुल सही बात है. केवला देव is in Banas and Chambal. No, it is in Gambhir and Banganga. कोलेरू लेक is between गोदावरी and कृष्णा. ये सब कुछ गलत है. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. So answer is A. That is one only. ठीक है. So Harike wetland is located at the confluence of Beas and Satluj. ये बिल्कुल सही. Can you see this type of questions? ये रिवर में बहुत घुस जाते हैं यार, कि इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी जाती है, ये कौन सी कहाँ, कौन सी नदी के बीच में क्या है, कौन सा जानवर है, कौन सा कुत्ता है, कौन सी बिल्ली. Will request that remember the rivers in as much detail as possible. ठीक है. So Harike wetland is located at the confluence. No, these are factual questions, but they are quite easily doable also, right? If you know the location and you know the rivers, then they are very easily doable. Koleru Lake, I know exactly it is in Godavari and Krishna because I've seen it on the map multiple times. So it's very easy to do it. Okay. ऐसा मत सोचना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. Once you are done with your basic mapping, then these questions are child's play. जैसे केवला देव नेशनल पार्क, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, वो पे बाणगंगा रिवर होती है एक, राइट. तो गंभीर बाणगंगा रिवर वहां पे मिलता है. Which of the following have coral reefs? Right. अब ये नहीं बोल रहा कि कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वैसे पूछ रहे हैं कोरल रीफ है क्या, थोड़ी बहुत भी है तो बता दो सर. राइट. तो देखो, सुंदरबन में तो कोई कोरल रीफ नहीं होती, इतना पक्की बात है. बट थोड़ी बहुत अंडमान में मिल जाएगी, थोड़ी बहुत गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगी, थोड़ी बहुत गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाएगी. इट विल नॉट बी लाइक अ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उस लेवल की तो नहीं होगी, बट थोड़ी बहुत मिल जाएगी. तो आंसर इज ए 1 2 3 ओनली. ये भी जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा कि कोरल रीफ कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, तो इट इज अगेन लाइक अ फेयरली इजीली डूएबल क्वेश्चन, राइट. So answer is A 1 2 3 only. So major reef formation in India are restricted to the following: Gulf of Mannar, Park Bay, Gulf of Kutch, Andaman Nicobar, Lakshadweep Islands. All right. So again, like not very difficult question to answer, right? Now let us discuss question number 10. Consider the following: bats, bears, and rodents. The phenomena of hibernation can be observed in which of the following? All right. So let us discuss कि इनमें से क्या है जो मिलता है. हाइबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, है तो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया. बट कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी? तो ये सब में ही मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है हाइबरनेशन. तो आंसर इज सी. आई विल कीप इट लाइक अ लिटिल टफ क्वेश्चन फॉर यू.
बिकॉज उतना मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा हाइबरनेशन एस्टिमेशन में। अमंग द फॉलोइंग अगेन लाइक अ टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन, टिपिकल गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन ऐसे काफी आते हैं। कैन एनीवन आंसर दिस फॉर मी? क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। सो अगेन इसका आंसर जो है वो क्रैब है। क्रैब एक क्रस्टेशियन होता है, ठीक है। क्रैब, श्रिम्प, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, ये सब क्रस्टेशियन होते हैं और जिनके 8 पाँव होते हैं, बस ध्यान रखना। स्पाइडर के 8 होते हैं, स्कॉर्पियन के 8 होते हैं, माइट के 8 होते हैं, कॉकरोच के 6 होते हैं, ठीक है। मॉस्किटो के 6 होते हैं। ऑलराइट। सो आप अगली बार जब देखो, मैंने तो खैर सबको, ओके। हाँ, ये थोड़ा पढ़ लेना यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दीज आर ऑल अरेकनिड्स, राइट। सो दीज आर ऑल अरेकनिड्स। अब ये पढ़ना इसलिए होता है क्योंकि सर यूपीएससी पूछ रहा है आपसे, आप समझ रहे हो। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? मार्सुपियल सर कंगारू वंगारू बोलते हैं। 3 तरह के मैमल्स होते हैं, बीच वाले मार्सुपियल्स होते हैं, मेटाथीरियन होते हैं। सो क्रैब belongs to the class of crustaceans, and mite, scorpion, and spider are arachnids. Just refresh it once, you will find it. Can everyone hear me clearly? Just reply Y fast if you can hear me. If everything is fine, just reply Y so that I know that we can move forward. Okay. So crab belongs to the class of crustaceans. Mite, scorpion, spiders, all of these are. आपने कभी स्पाइडर को देखा है पास से घूर के? उसके 8 अपेंडेज होते हैं, कभी देखना पास से, उसके 8 होते हैं। अगर मच्छर को कभी देखा होगा तो उसके 6 होते हैं, कॉकरोच के 6 होते हैं। अगर स्कॉर्पियन कभी देखा होगा तो 8 होते हैं, माइट को कभी देखा होगा तो 8 होते हैं, या आप गूगल भी कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? कि ऑब्वियसली डायटम सबसे पहले चालू होंगे। डायटम्स आर नथिंग बट फाइटोप्लैंक्टॉन्स, दे आर यूनिसेलुलर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। सो स्टार्ट डायटम से होगा, फिर क्रस्टेशियंस को खा जाएंगे, फिर हेरिंग उसको खा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी करेक्ट सीक्वेंस है, आंसर इज ए। सो क्रस्टेशियन अभी बताया ना मैंने आपको, जैसे छोटे छोटे क्रैब्स, श्रिम्प, लॉबस्टर एक्सेट्रा। हेरिंग कुछ नहीं होता, हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश, ऑलराइट। सो एनसीईआरटी पढ़ोगे ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। हेरिंग इज अ स्मॉल फिश, ठीक है, छोटी सी फिश होती है। सो दैट इज हेरिंग, ऑलराइट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, डायटम्स, क्रस्टेशियंस। ओके। नहीं बन रहे सर ये सब, नहीं बन रहे सर ये सब, नहीं बन रहे तभी तो कोर्स ले रहे हो तुम। बन ही जाते तो फिर एग्जाम ही दे दो डायरेक्टली। ऑब्वियसली भी कहाँ से बनेंगे, कोई पढ़ाई नहीं कुछ, कहाँ से बनेंगे। ऑलराइट, इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? इसका इंटेंशन ये थोड़ी है कि आपको आता है कि नहीं आता। डायटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग। सो डायटम्स आर यूनिसेलुलर एल्गी, ऑलराइट। एनवायरनमेंट में रटना बहुत पड़ेगा। एक सब्जेक्ट बताओ यूपीएससी का जिसमें रटना नहीं पड़ेगा। गौतम बुद्ध के पास जाता है ना एक इंसान की, भाई मेरे बेटे की डेथ हो गई, इसको जिंदा कर दो, राइट। गौतम बुद्ध बस यही बोलते हैं कि हर घर जाओ और एक घर से पानी लेके आ जाओ जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई, राइट। ये बोलना बहुत आसान है कि यहाँ पे रटना पड़ेगा और यहाँ पे नहीं रटना पड़ेगा, बट यू टेल मी वन सब्जेक्ट जिसमें नहीं रटना पड़ेगा, भाई वही पढ़ा लेते हैं फिर। ओके। यू टेल मी वन सब्जेक्ट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ academics इंक्लूडिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यू टेल मी वन सब्जेक्ट जिसमें नहीं रटना पड़ेगा एंड आई विल चेंज माय नेम। एथिक्स में नहीं रटना पड़ेगा? वो कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो? फिर आप तो, फिर आप पढ़ते ही क्यों? फिर जाके दे आओ पेपर। रटना नहीं पड़ेगा का मतलब है कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, यू कैन जस्ट गो एंड गो, ऑलराइट। हिंदी में आपको शायद इसलिए नहीं रटना पड़ेगा बिकॉज आपको पहले से आती है, आपने पहले रट रखा है। डू अंडरस्टैंड? हिंदी का मतलब क्या? कभी बैठ के, राइट। थ्योरी को आप थ्योरी क्यों लिखते हो, फाइटोप्लैंक्टन को फाइटोप्लैंक्टन क्यों लिखते हो? सब रटाई तो है आपने वन पॉइंट ऑफ टाइम में कि मेरा नाम रोमन सैनी, आपने रटाई तो है बैठ के। डू अंडरस्टैंड? आपको क्या पैदा होते ही आ गया था कि मेरा नाम रोमन सैनी है? यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, राइट। भाई सचिन सचिन जब 200 बार किया होगा, सचिन सचिन, तभी तो याद आया होगा। जब वो इंसान की फोटो देखेगी तो सचिन होगा। पहली बार जब देखा होगा तब थोड़ी याद होगा कि वो सचिन है, राइट। सो एवरीथिंग यू मेमोराइज सर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग।
कि फिजिक्स का मतलब फिजिक्स होता है, वो भी तो कभी मेमोराइज किया होगा लाइफ में, कि पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, एवरीथिंग इज मेमोराइज्ड। सो स्टॉप सेइंग कि इसको रटना पड़ेगा, इसको नहीं रटना पड़ेगा। दीज आर ऑल डिफीटिस्ट एटीट्यूड विच इट इज सेल्फ प्रोपोगेटिंग थिंग। जस्ट रिमेंबर, आपके मम्मी पापा का नाम भी तो आपने 3-4 साल की उम्र में याद किया होगा ना। जब आप 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, कई महीनों तक ट्राई किया होगा मम्मी का नाम बोलना, पापा का नाम बोलना, कहाँ एड्रेस है, कहाँ पैदा हुए हो, क्या दादा का नाम क्या है, नाना का नाम क्या है, राइट। आपको कोई 5 साल लग गए होंगे सब सीखने में, कितना रटा होगा आपने, सोचो। पीपल जस्ट फॉरगेट थिंग्स वेरी फास्ट। आप मेरे को 30 दिन दे दो एनवायरनमेंट में, आपको ऐसा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बट नई चीजें सीखना क्या अडल्टहुड में डिफिकल्ट हो जाता है भाई, अब तो लाइफ हो गई, अब क्या पढ़ना है, राइट। सो इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज, यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली देयर। ओक मिलेगा, मिलेगा, और रोडोडेंड्रॉन मिलेगा, बिल्कुल 100%। रोडोडेंड्रॉन तो मिलेगा। सैंडलवुड, चंदन नहीं मिलेगा सर आपको वहां पे, चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा आपको। Answer is A. So you'll find like oak, birch, juniper, chestnut, pines, firs, alders, bamboo, rhododendron, lichens, mosses, ये सब भी मिल जाएंगे आपको. But sandalwood will never be present in Himalayan region. Is it absolutely clear? I hope आपको पता होगा कि चंदन का जो पेड़ है, so वो हिमालयन रीजन में उग ही नहीं सकता. It is not even possible for it to grow. Is it absolutely clear? सैंटालम जो जीनस है वो मतलब चलो बाद में पढ़ाएंगे, फालतू क्यों परेशान कर रहे हैं. If you walk through countryside, you are likely to see. अरे आपको पेंगुइन थार डेजर्ट में मिलेगी क्या? भाई और पूछ रहे हो अलग से, पेंगुइन मिलेगी थार डेजर्ट में? या आप कहीं थार डेजर्ट में जा रहे हो, वहाँ पे 3 पेंगुइन चिल मार के बैठे हैं, आओ साहब बाजू वाली सीट खाली है बैठो। कॉमन सेंस है ना, मतलब मैं कोई आपको ऐसे कोई जापानी टेक्निक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से आया है ये सैंटेलम जो जीनस होता है आपका? दिस इज फाउंड इन लाइक ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, इंडो मलाय, दिस काइंड ऑफ बेल्ट इट इज फाउंड इन, ऑल राइट. So it is not like it is like typically found in Indonesia or Australia. These kind of very dry deciduous या semi temperate tropical. हिमालय में कहाँ से आएंगी कंडीशंस, समझ रहे हो? So if you walk through countryside, you're likely to see some birds talking alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses. Which of the following are such birds? अब ये बहुत ही घटिया चीपड़ सा क्वेश्चन है, जिसका कोई आंसर नहीं निकलेगा कहीं से भी, मतलब निकल जाएगा आंसर, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैना मिलेगी वहां पे। ठीक है। स्टॉर्क तो कहीं मिलेगा ही नहीं, वो तो मछलियां खाता है। और ब्लैक नेकेड क्रेन, जो क्रेन होता है तिब्बत में मिलते हैं, बट मैना मिलेगी आपको, ठीक है, मैना। राइट। बट बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत ही, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैना तो आंसर है, बट मैं ना बोलूंगा इसको, ठीक है। सो पेंटेड स्टॉर्क विल फीड ऑन फिशेस इन द लेक्स. Black necked cranes will be found in Tibetan plateau, but yeah, if you are actually seeing this, then you manage the answer. Other than poaching, what are the possible reasons for the decline in the population of Gangetic River dolphin? All right, sir, please suggest reference book. Sir, which book? Which book? Which book? Which book? Which book? Which book is here? Which book is here? And which book is here? All right. So, other than poaching, what are the possible reasons for the decline in population of Ganga River dolphin? So, construction of dams and barrages on rivers. Yes, this is a huge reason. Increase in population of crocodiles in rivers. भाई जब सबकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्रोकोडाइल कहाँ से बढ़ जाएंगे? Getting trapped in fishing nets accidentally. Yes. Use of synthetic fertilizers. Yes. So answer is C134. उसको प्यार से सूसू भी बोलते हैं, राइट। आपको पता होगा इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, सूसू भी बोलते हैं प्यार से, बिकॉज उसकी आवाज वैसी निकलती है, विसल जैसी, ठीक है। और अंधी होती है बेचारी, कुछ देख नहीं सकती, ठीक है। कई लोगों को लगता है वो क्रोकोडाइल सामने आ जाता होगा तो खा जाता होगा। क्यों पूछ रहे हो सौरभ, मैं बताया तो सही आपको, अभी तो बताया, अंधी होती है, राइट। So crocodiles do not prey on dolphins. Is it absolutely clear?
अच्छा कोई बात नहीं सौरभ, आप टाइप पहले कर दिया आपने, प्री मैच्योरली टाइप कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे हम आंसर पहले ही कर देंगे, ठीक है। तो गंगेटिक डॉल्फिन आर फाउंड अलोंग विद क्रोकोडाइल्स इन द गंगा, बट क्यों लड़ेंगे आपस में, राइट? क्रोकोडाइल के पास खाने की कमी है जो मुझे डॉल्फिन के पीछे पड़ेगा, राइट? इट डजंट मेक सेंस। विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल gas, consider the following statements. Coal bed methane is the pure methane gas extracted from coal seams, or shale gas a mixture of propane and butane only, which can be extracted from fine grained sedimentary rocks. उस टाइम पे शेल गैस सर बहुत बहुत ही मतलब मस्त हो रखा था। ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। शेल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CO2, NO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, पता नहीं क्या क्या होता है। इससे घटिया क्वेश्चन मैंने सुना नहीं। और यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, इतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा ऐसे कौन लिखता है भाई साइंस में? ऐसे तो कोई मैंने तो नहीं देखा आज तक। ओनली 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 प्रोपेन ब्यूटेन ओनली, ऐसे कैसे हो सकता है? जमीन के अंदर तो 50 चीजें और निकले, ओनली ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल इन साइंस सर। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन ब्यूटेन ओनली, ऐसा नहीं हो सकता, गलत है स्टेटमेंट। इन इंडिया abundant coal bed methane sources exist but so far no shale gas source has been found। कैसी बातें कर रहे हो सर? रोमन तो रटाता है, ऐसे टेबल बनवाता है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये तो गलत है सर। रोमन तो रटाया था हमें कि कोल गैस की, शेल गैस की यहाँ पे साइट्स होती हैं। तो आंसर है इसका तो डी हो गया सर, डी से दादा। शेल गैस मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इंडिया हैज 6 बेसिन एज फार केम गुजरात, आसाम, अराकान, नॉर्थ ईस्ट, गोंडा, सेंट्रल इंडिया, कृष्ण गोदावरी ऑन्चर, ईस्ट कोस्ट कावेरी ऑन्चर, इंडिया कैटेगरी। उसे रटना नहीं बोलते, उसे रटना नहीं बोलते, ऐसे कैसे नहीं बोलते? क्या रटना नहीं, किसकी बात कर रहे हो, क्या चल रहा है? क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं सर। आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बोलो यार पेपर बनाए, हर साल सर सेम क्वेश्चन आने चाहिए सर। आपने बोला तो सर इम्पोर्टेंट है। मतलब देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देश के सबसे बड़े एग्जाम को करा रही है और देश की सबसे बड़ी पोस्ट फिल करवा रही है, और आप बोल रहे हो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। आर्टिकल 308 से 323 के बीच में मतलब 15 आर्टिकल दिए हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उससे रिलेटेड चीजों को। 15 आर्टिकल किसको देते हैं? उनसे तुम बोल रहे हो क्वेश्चन रिपीट कराओ यार, कुछ तो मजे करो। इन इंडिया क्लस्टर बीन गुआर इज ट्रेडिशनली यूज्ड। यहाँ लोगों का एक बार नाम आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलने लग जाता है, ठीक है। सो और यहाँ पे 15 आर्टिकल दे रखे हैं, अरे कुछ तो रॉब होगा ना। So in India, cluster bean guar is traditionally used as a vegetable or animal feed, but recently cultivation of it assumed significance. Obviously उसका जो गम होता है ग्वार गम, उससे एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस होता है। ये हमारे गांव में 5 रुपए किलो मिलती थी और इसका प्राइस रातों रात 100 टाइम्स 1000 टाइम्स हो गया था उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए। तो जितने भी जो वहाँ पे फार्मर्स थे उन्होंने करोड़ों रुपए बना करके और फॉर्च्यूनर ले लिए। और राइट phenomenon 2014-15, all right. So answer is B. The gum made from its seed is used in the extraction of shale gas. All right. 333 नहीं है सर, 323 है। 323 के बाद तो इलेक्शन कमीशन चालू हो जाता है। ऐसे मत करो, गंदी बातें मत करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में गंदी तरीके से घुसा हुआ है, ठीक है। सो गुआर कौन अकेडमी कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ, मिल मिल के क्या करोगे? मैं कोई वो थोड़ी हूँ, भगवान का मसीहा थोड़ी हूँ मैं मिल लिया सर से हाथ लगा लिया अब अमरता मिल जाएगी, क्या करोगे? बैठा हूँ ना सामने। So guar is used in the extraction of shale gas. Yes, high viscosity water is required for pumping and the fracturing the process. Guar seed makes the water viscous, so absolutely correct. All right. Hmm. So with reference to technologies for solar power production, consider the following statements. So let us get started with this question. Photovoltaics, okay, produces AC current, और ये कौन सा AC करंट कहाँ से प्रोड्यूस करवा दिया? ओके,
ये बकवास है. इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स. अभी उस टाइम के लिए हाँ. टेक्नोलॉजी जनरेट इलेक्ट्रिक डायरेक्ट करंट लाइट एंड इलेक्ट्रिक सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी. एक बार मैं खुद ही भूल जाता हूँ, बार बार पढ़ना पड़ता है. यूटिलाइज सन्स रेज टू जनरेट हीट विच इज फर्दर यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. हाँ, सो इसका आंसर होगा ए वन ओनली. ऑलराइट. इससे ये भी पता चलता है कि मतलब मैं थोड़ा दिमाग लगा के बोलता हूँ सब कुछ, वरना कई टीचर तो हाँ इसका आंसर है ए, आगे वाले का आंसर है बी, आगे वाला आंसर है डी, आप पता ही होगा आगे वाला बी, आगे का ए. अरे यहाँ पे एबीसीडी सिखाने आए हो, वो बता तो दो. So this is absolutely wrong, sir. Photovoltaic generate direct current. So this statement is absolutely wrong. All right. And third is also wrong. So answer has to be A1 only. There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements which are used by the industry in manufacture of various products. Why? Why so serious, son? So why nanoparticles are so bad? So they can accumulate in the environment, contaminate water and soil. Yes. They can enter the food chains. Yes. They can trigger the production of free radicals. Yes. 100%, sir. All the statements are absolutely correct. And I'll teach you nanotechnology. Can you see we are into 19th question and still environment is continuing? Can you see this? Which of the following are important pollutants released by steel industry in India? All right. All right. देखो भाई, सल्फर और नाइट्रोजन तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ से नहीं निकलता. ऑल राइट. और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती ही है. तो आंसर होगा मेजरली बहुत ज्यादा निकलती है. और ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ठाक ठीक से निकल जाती है. तो आंसर इस केस में हो जाएगा डी 1 2 3 4. ठीक है. Brominated flame retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? So उस टाइम पे अगेन न्यूज में था. तो इट इज वेरी मच नोन फॉर अक्यूमुलेटिंग इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ऑलराइट. एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट. तो आंसर सर इसका हो जाता है सी 1 and 2 ओनली. ऑलराइट. ठीक है सर. सो आंसर हो गया इसका सी 1 and 2 ओनली. तो यस, दे आर वेरी डेंजरस एंड दे आर प्लास्टिक्स टेक्सटाइल्स इनमें यूज होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. उस टाइम पे आर्कटिक काउंसिल भी न्यूज में हुआ करती थी. मैं आपको इनका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई कहाँ से पूछ रहा है, रोमन पागल हो गया. ऐसा नहीं है. तो यूपीएससी उस टाइम आर्कटिक काउंसिल वाज इन न्यूज. ऑल राइट. काफी ज्यादा न्यूज में थी. अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. तो इसमें रशिया तो ऑब्वियसली है, यूएसए ऑब्वियसली है, अलास्का के चक्कर में. यूके क्या करेगा आर्कटिक काउंसिल में? ये क्या बकवास है. सो फोर्थ तो हटाओ, फोर्थ हटाओ, तो क्या बचा? और यूएसए तो होगा ही, अलास्का आता है ना इसका पूरा ऊपर, आपको पता ही होगा. राइट. सो आंसर हो गया इसका डेनमार्क है, रशिया है, अलास्का है. तो आंसर हो गया इसका 135. ऑल राइट. Yes, you can say that. So the Arctic Council consists of 8 Arctic states: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden और US. ठीक है. So all right. नॉर्डिक का लेना देना नहीं, जो आर्कटिक सी जिससे बॉर्डर करता है. ऑल राइट. सो प्लीज रिमेंबर दैट आर्कटिक काउंसिल. तो कनाडा से चालू कर देना और बाकी और साथ जोड़ देना. The reference to GEF, Global Environment Facility, which of the following statement is or are correct? All right, so let us discuss this. So it serves as a financial mechanism. 100% correct for CBD and UNFCCC. बिल्कुल 100% correct. All right. CBD plus UNFCCC 100% correct. इनको पैसा देती है. ठीक है. So it serves as financial mechanism for CBD and UNFCCC. 100%, 200%, 2000% correct, sir. So answer is A. It undertakes scientific. Oh. और साइंटिफिक रिसर्च ये कब से करने लग गया भाई? साइंटिफिक रिसर्च ये तो पैसा वैसा देती है साहब, ये कुछ नहीं करती. It is an agency under OECD to facilitate transfer of technology funds to underdeveloped specific bakwas. So answer is A one only. All right. So it's an international partnership. It provides funding. Is it clear? There's nothing else. It's a funding mechanism. That's all it is. All right. So don't worry about these things. छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत उतनी नहीं है. So wetland of international importance is brought under the Montreal Accord under Ramsar Convention. What does it imply, sir? What does it imply? It means that
ecological character of that particular wetland is undergoing change, or the changes are occurred, or they are occurring, or they are likely to occur in the wetland as a result of human interference. That is why we are trying to put into the Monterey Accord, which is a part of the Ramsar list. It's a very, very easy question. It's a very, very fudgy question. All right. Any person with 5% knowledge will understand that Ramsar Convention is very important. All right. So changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. So answer is A. So Monterey Record is a register of wetland sites. आपको इससे ये तो पता चल गया होगा रामसर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं रामसर के ऊपर, ऑल राइट. And this is not related to India, right? This is related to Iran. Iran में एक साइट है रामसर. So कई लोगों को रामपुर सुनाई देता है, रामसर है, रामसर अलग है, रामपुर नहीं है, ठीक है. So where changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution, or other human interference, it is maintained as part of the Ramsar list. All right. It is easy and it is fudgy because at that time it was in news each and every day. That is why I am calling it fudgy. Is it absolutely clear? उस टाइम पे सर ये रोज डेली न्यूज पे आता था. With reference to a conservation organization called as Wetland International, which of the following statements are correct? It is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar Convention. It is the only global NGO. It is an NGO. It is wrong. It works at a field level to develop and mobilize knowledge, use the practical experience to advocate for better policies. Yes, this is correct. So answer is B. So it is the only global NGO which is dedicated to wetland. Again, it is a fudgy question, current affair based question. So at that time, Wetland International was in news a lot of time. अभी देख रहे हो उस टाइम में 26 क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी एनवायरनमेंट ही खत्म नहीं हो रहा. डू यू अंडरस्टैंड? एंड दीज आर जेन्युइन एनवायरनमेंट क्वेश्चन, राइट? मैं से बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी नहीं घुसा रहा आपके अंदर कि भाई पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ भी एनवायरनमेंट में डाल दी, सब एनवायरनमेंट. दे आर लाइक हार्डकोर एनवायरनमेंट क्वेश्चन, ऑलराइट. तो 2014 में अगर पढ़ लेते एनवायरनमेंट तो आज आईएएस बने होते कुछ लोग, ऑलराइट. लेट अस गेट स्टार्टेड. The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations Convention to Combat Desertification, the World Heritage Convention. Again, like a pretty fudgy question. So answer is D, all the above, because सब में कोई ना कोई एक लाइन तो डाल ही देते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? चाहे कितनी कन्वेंशन हो कुछ भी, तो एक लाइन तो लिख ही देते हैं, वी शुड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. सो आंसर इज D 1 2 3. जस्ट रिमेंबर दैट. So everything has something or the other. Question number 27. The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. Above the pre-industrial level, what can be its possible impact on the world? ठीक है भाई, बताओ. Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. Yes. Widespread coral mortality will occur. Yes, all the global wetlands will permanently disappear. अब तो ऐसे फर्जी स्टेटमेंट चलते हैं साइंस में, all will permanently disappear. मतलब ऐसे कोई स्टेटमेंट ही देखो, all will permanently disappear. ऐसे तो आज तक ही कुछ नहीं हुआ. ये तो obviously all cannot permanently disappear. Cultivation of cereal will not be possible anywhere in the world. डायलॉग सुनो सर आप तो. Cultivation will not be possible anywhere in the world. खाएंगे क्या? ऐसे बोलते भाई ट्रॉपिकल कंडीशन में नहीं होगा. कैसे, कहाँ कहीं तो उगेंगे ना. बोलते इंडिया में दिक्कत होगी, समझता. अफ्रीका में दिक्कत होगी, समझता. इंडोनेशिया में दिक्कत होगी, समझता. बट यूरोप में उगेगा ना, बढ़िया उगेगा, बढ़िया मक्का बाजरा उगेगा, वहां पे खाएंगे रोटियां. ऑलराइट. सो आंसर इज 1 and 2 ही होगा इसका. तो फोर्थ तो बिल्कुल ही बकवास है. फोर्थ तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है. Global warming will lead to destruction of coral reefs. Yes, 100% correct, sir. All right. It will lead to huge coral mortality. Terrestrial biosphere will tend to become a net carbon source. Wetlands will not disappear permanently. And cereal cultivation will move to higher altitudes and higher latitudes. ठीक है. LT mimics LT, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, right? Consider the following statement. 28 क्वेश्चन पहुंच गए हम. Animal Welfare Board of India is established under Environment Protection Act of 1986. All right. नहीं 2013 में हुआ था. उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस कर रखे हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. सो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 86. नॉनसेंस. इट इज अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. यस. NGRBA is chaired by प्राइम मिनिस्टर. यस. सो आंसर हो गया इसका बब्बा 2 3. ऑलराइट.
So Animal Welfare Board is established under Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960. क्वेश्चन खत्म हो गए कि नहीं हुए? आप तो ये बताओ, अब बताओ क्वेश्चन खत्म हुए कि नहीं? अभी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. With reference to Bombay Natural History Society, consider the following statements. It's an autonomous organization under Ministry. It's a bakwas. It's an NGO, all right. It does not come under Ministry of Environment. It's a Pan India Wildlife Research Organization, all right. So it strives to conserve nature through action-based research, education, public awareness. It organizes, conducts nature trends camp for general public. Obviously, answer is C 2 and 3. So it does not come under Environment Ministry at all. ठीक है, बिल्कुल बकवास. अच्छा, आप खत्म हो गए कि नहीं हुए बताओ? लगाओ लगाओ, बोली लगाओ जल्दी. नहीं सर, अभी भी पिक्चर बाकी है. कंसिडर इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को. इस क्लास का नाम होना चाहिए था 2014 का प्रीलिम्स एनालिसिस rather than environment and ecologic analysis, right? So it is an initiative of UNEP and UNESCO. Bakwas. It is a movement in which the participants switch off the lights for 1 hour on a certain day every year. Yes. It is a movement to raise the awareness about the climate change, need to save planets. Yes. So answer is C 2 and 3. It is by World Wildlife Fund for Nature. Bakwas hai, absolutely UNEP, UNESCO, bakwas. अभी भी बचे हैं. Every year, a month-long ecologically important campaign festival is held during which certain community tribes plant saplings of fruit bearing. Which of the following are such community or tribes? तब ये तो मैं आपसे expect नहीं करता. But Gond and Korku is the answer. So answer is B. So Gond and Korku tribe of MP, Betul Harda district, they celebrate Hari Charoti. Alright, so it's a month-long festival of greenery and plant saplings are. क्या beautiful festival है, right? क्या beautiful festival है. Plant saplings लगा रहे हैं ताकि fruit bearing trees हो गए, ताकि उनके आगे आने वाली generation खाना खाए बढ़िया. Alright, so ऐसे ही festival होने चाहिए. तो सर आज का देखो टाइम हो गया. तो अभी मेंस के जो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे. हम अगले 2 सेशन में भी प्री पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का प्री तो निकल जाए. और फिर जब मैं उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहूँगा तो तब मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा उसमें. ठीक है, तो टेक केयर एंड आई होप यू लाइक द क्लास टुडे. मजा आया? So we discussed a lot of questions today also. We'll start from 2015 in the next session. So like which of the following is being unique in a swamp with a rich biodiversity? So answer is here Kibul Lamjao National Park, Floating National Park, Fumdi, Manipur, and this and that world only natural Sangai deer, brown antler deer, Manito Globe, Takle, Kibul Lamjao, blah 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 blah. Chalo, take care, good night. I'll see you. Okay.